A very good morning to all you students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. You know very well in the last few videos we discussed that is a redressal agencies. For the redressal of consumer grievances, the Consumer Protection Act 1986 provide for setting up a three-tier machinery at district, state and national levels. And in the last video, we can clearly and very broadly studies of these three types of the redressal agencies. You can see that in the last video, they are basically three types of the consumer forum in which consumer easily file their complaints and find the solution as per their needs. So in this video, first of all, we revise all the three redressal agencies, that is known as the three consumer courts, which facilitate to promote and protect the interest of consumer, as well as if there are any kind of complaint or dissatisfaction regarding the product or services by the consumer, so the consumer can easily get the compensation from the producer, seller or service provider. So you can see that in today's video, firstly the summary of three redressal agencies and machinery are as follows. The first column represent the basis, second column represent the district forum, third column will be represent to the state commission, and fourth column that is a national commission. So you can see that they are basically three redressal agencies, that is also known as the three-tier machineries for the redressal of the complaints of the consumer. So the first one, the basis is on the basis of committee, on the basis of formation. So you know very well, district forum has a one president and two other members. One should be a woman. So you can see that under the district forum there should be a president and two other member, and out of the two member you can see that one should be a woman. एक कम से कम woman होना ज़रूरी है. But when we are talking about the state commission, so you can see that in the state commission there should be a one president and two other members. One should be a woman. So you can see that इन द स्टेट कमीशन एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और कम से कम दो मेंबर्स होने चाहिए, और दो मेंबर्स में से कम एक क्या होना चाहिए, वोमेन होनी चाहिए. If we are talking about the national commission, so you can see that in the national commission there should be a one president and minimum 4 members, one should be a woman. यानी कि अगर हम नेशनल कमीशन की बात करें तो कम से कम एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए. सो बेसिकली यू कैन सी दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली उसमें एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होना चाहिए, बट द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के बारे में यहाँ नहीं बोला है. सो मैं बता दे रहा हूँ आपको. प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन अंडर द डिस्ट्रिक्ट फोरम, यू नो वेरी वेल, इक्वलेंट टू द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यू कैन सी दैट जो जज होते हैं उनके भी कोई पोजिशनल होते हैं, स्टेट पोजिशनल होती है उनकी, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज. सो यू नो वेरी वेल, डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट बनने के लिए क्राइटेरिया ये है कि प्रेसिडेंट हैज़ बीन द कोर्ट ऑफ हैज़ बीन द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट जज. ओके, सो या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या फिर वो प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट जज हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बन सकता है, और उसके साथ साथ 2 मेंबर होनी जिसमें एक वुमेन होनी ज़रूरी है. अगर हम स्टेट कमीशन की बात करें तो स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें 2 मेंबर्स में से एक वुमेन होनी चाहिए. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन, सो यू नो वेरी वेल, स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट बनने के लिए जो भी प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल होगा उसे कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. बट उसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी कि ही हैज़ बीन जज ऑफ स्टेट कोर्ट, दैट इज़ अ हाई कोर्ट, और ही इज़ वर्किंग एज अ हाई कोर्ट जज. ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल कमीशन, सो यू कैन सी दैट एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 मेंबर, और जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए. इसमें प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है कि प्रेसिडेंट हैज़ बीन वर्किंग एज अ सुप्रीम कोर्ट जज और
प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। सो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज प्रेजेंटली हो या हो चुके रहे हों पहले पास्ट में। स्टेट कमीशन के लिए वही शर्त है कि स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको हाई कोर्ट के जज होना चाहिए, और या फिर हाई कोर्ट का जज वो प्रेजेंटली हो। भाई नेशनल कमीशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। अगर हम बात करें कमिटी अपॉइंटेड, तो यू नो वेरी वेल डिस्ट्रिक्ट फोरम्स की अपॉइंटमेंट जो होती है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम को क्रिएट करने का, इस्टेब्लिश करने का, उसमें रिक्रूटमेंट करने का सारा राइट स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और स्टेट कमीशन में सारे रिक्रूटमेंट और कमिटी डिसाइड करने का डिसीजन भी पूरा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी नेशनल कमीशन, सो यू कैन सी दैट नेशनल कमीशंस में कमिटी अपॉइंटमेंट करना या फिर कमीशंस की इस्टेब्लिशमेंट करना, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ओके, द नंबर थर्ड डिफरेंस इज क्लेम लिमिट। दैट्स अ बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इज अ क्लेम लिमिट। सो यू नो वेरी वेल डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 रुपीज़ से लेके 20 लाख रुपीज़ तक के क्लेम एडमिसिबल होते हैं। यानी अगर आपकी क्लेम 1 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्लेम के लिए क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। बट इन द स्टेट कमीशन, यू नो वेरी वेल, स्टेट कमीशन में ये लिमिट बढ़ जाती है। इन द स्टेट कमीशन एक्सीडिंग ₹20 लाख बट नॉट मोर देन 1 करोड़। यानी कि स्टेट कमीशन में ये लिमिट होती है फ्रॉम 20 lakhs to 1 करोड़। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी नेशनल कमीशन, सो यू नो वेरी वेल, नेशनल कमीशन के लिए लिमिट बनाई गई है दैट इज़ एक्सीडिंग ₹1 करोड़। यानी नेशनल कमीशन में अगर आपको क्लेम फाइल करना है तो द क्लेम लिमिट इज़ बियॉन्ड ₹1 करोड़। सो यू कैन सी दैट मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो अगर आपका क्लेम की वैल्यू 20 लाख रुपए से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कम क्लेम करेंगे। अगर आपकी क्लेम की वैल्यू 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में है सो आप स्टेट कमीशन में फाइल करेंगे क्लेम। और अगर अगर आपकी क्लेम की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है सो यू शुड गो टू द नेशनल कमीशन। ओके, एंड नंबर 4 फर्दर अपील। यू नो वेरी वेल डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो डिसीजन आया हो सकता है कंज्यूमर को वो डिसीजन सेटिस्फाइड ना हो। स्टेट कमीशन से जो डिसीजन आया वो भी हो सकता है हमारे कंज्यूमर्स को उसके लिए अप्रोप्रिएट ना लगे। और नेशनल कमीशन के केस में भी सेम हो सकता है कि नेशनल कमीशन ने जो डिसीजन लिया हो सकता है उससे भी हमारे कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड ना हो। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर डज नॉट सेटिस्फाइड with the decision from the district forum, state commission or national commission, so he can appeal his claim furtherly. अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से कोई डिसीजन मिला है और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है सो उस केस में वो स्टेट कमीशन में क्लेम को फाइल कर सकता है अगेन। एंड नेशनल कमीशन में कब जाएगा, जब स्टेट कमीशन के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है। एंड इन केस ऑफ when any consumer does not satisfied with the decision of the national commission, so if he can go the supreme court, ये भी याद रखिएगा। अब कोर्ट फाइल कर सकते हैं आप फर्दर अपील, बट उसके लिए भी एक टाइम डिसाइड की गई। यू नो वेरी वेल, एनी पर्सन हु इज एग्राइड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन अपील सच ऑफ द नेशनल कमीशन टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days ऑफ पासिंग सच ऑर्डर। ये सबके साथ है। डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उसके डिसीजन से सो यू कैन गो टू द स्टेट कमीशन विद इन 30 days। स्टेट कमीशन के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गो टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 days ऑफ पासिंग सच ऑर्डर। एंड नेशनल कमीशन के डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days ऑफ पासिंग सच ऑर्डर। सो यू कैन सी दैट द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एंड with the help of these analysis we can find a few important feature of the district forum, state commission and national commission, as well as we can easily differentiate among each other. You can see that हम इस पूरे टेबल से ना ही सबके इंपॉर्टेंट फीचर को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। जैसे अगर आप देखो तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बीच में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन भी क्रिएट कर लिया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कमिटी, on the basis of the qualification of the president, on the basis of the committee appointment, on the basis of the claim limit, on the basis of further appeal, and on the basis of time limit. So you can see that हमने comparative analysis किया between the district forum, state commission, national commission. So we can find that a suitable diagram which helps to the underline the important point regarding these three redressal agencies.
सो यू कैन सी दैट सबसे लोवेस्ट जो फोरम होता है कंज्यूमर फोरम, दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन क्लेम इज़ नॉट मोर देन 20 लाख। अगर आपका क्लेम 20 लाख रुपीज़ से कम है, सो यू कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। देयर आफ्टर यू शुड गो टू द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन जाने के लिए आपके पास या तो हो सकता है एक प्रोसेस कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, स्टेट कमीशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। बट 30 डेज़ के अंदर, यानी जो डिसीजन आया है उसके 30 डेज़ के अंदर ही आप जाकर स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जब आप स्टेट कमीशन में आपको फाइल करना पड़ता है, दैट इज़ व्हेन क्लेम इज़ मोर देन द 20 लाख बट नॉट मोर देन ₹1 करोड़। यानी अगर आपकी क्लेम की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम हो, तो सिचुएशन में आप स्टेट कमीशन में डायरेक्टली क्लेम डिमांड कर सकते हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। एक, जब आप इनिशियली कहीं क्लेम करना है, आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग अगर आपको कंपनसेशन डिमांड करना है और उस कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख रुपए से कम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपील कर सकते हो, क्लेम डिमांड कर सकते हो। बेसिकली स्टेट कमीशन में क्लेम फाइल करने के 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसीजन, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, सो आप 30 डेज़ के अंदर स्टेट कमीशन में क्लेम फाइल कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये होता है स्टेट कमीशन में क्लेम फाइल करने का, इफ़ क्लेम इज़ मोर देन 20 लाख बट नॉट मोर देन द 1 करोड़। यानी अगर क्लेम की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगी और 1 करोड़ रुपए से कम होगी, तब आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जाकर क्लेम फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन। सो यू नो वेरी वेल, it is regulated by the state government, central government, and you know very well कि नेशनल कमीशन में जाने के 2 प्रोसेस हैं, 2 तरीके हैं। द फर्स्ट फॉर्म इज व्हेन एनी कंज्यूमर does not satisfied with the decision of the state commission, so in this situation he can furtherly appeal to the national commission within a 30 days. And number second point, when claim is more than ₹1 करोड़, यानी कि अगर क्लेम की वैल्यू 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 30 डेज़ के अंदर भी आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं अपनी क्लेम के साथ। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू नो वेरी वेल, दैट इज़ व्हेन क्लेम इज़ मोर देन ₹1 करोड़। ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी एप्लीकेबल होता है, बट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द यस गुड, इट मीन्स जब अगर आप नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, सो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो दिस इज द रेजिडेंशियल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द सबसे अपेक्स लेवल में है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास आप कब जाते हो, जब नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो उसके 30 डेज के अंदर। नंबर सेकेंड, नेशनल कमीशन जब क्लेम की वैल्यूज मोर देन ₹1 करोड़ और व्हेन कंज्यूमर डज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के लिए क्या प्रोविजन है, व्हेन क्लेम इज मोर देन ₹20 लाख बट नॉट मोर देन ₹1 करोड़, सो इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर कैन फाइल देयर क्लेम in the state commission, as well as when any consumer does not satisfied with the decision of the district forum, so he can easily file the case in the state commission within 30 days. And district forum के लिए क्या criteria है, that is when claim is not more than ₹20 lakh, यानी अगर claim की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो you are initially आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम। सो सबसे इस पूरे 3 टायर सिस्टम में यू कैन सी दैट ये 3 टायर सिस्टम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। रेजिडेंशियल एजेंसीज को 3 टायर सिस्टम कहा जाता है। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ 3 टायर सिस्टम, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके, नेशनल कमीशन इज़ अ अपेक्स लेवल, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम देश के हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम क्रिएट करती है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट करती है और सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम को कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे एक स्टेट कमीशन भी होता है और सारे स्टेट कमीशन को रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स को नेशनल कमीशन होता है। और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए प्रोविजन बनाया, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो यू कैन सी दैट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट every consumer have a right to seek redressal
by the following three types of consumer court, that is a district forum, state commission and national commission. So this is a short and very important information related to the redressal agencies. Now we will move to the next topic of this chapter. You know very well, according to Consumer Protection Act 1986, it provides a certain rights to the consumer, like a right to inform, right to safety, right to choose, right to be heard, right to be consumer education, and right to be seek redressal. So there are basically 6 rights which are given by the Consumer Protection Act 1986 to the every consumer. But when we are talking about the consumer responsibilities or duties of the consumer, so it is a very important part of the Consumer Protection Act 1986, because you know very well, rights come with responsibility to exercise right. अगर आपके पास राइट होता है तो उस राइट को परफॉर्म करने के लिए, उस राइट को ईजिली यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं. सपोज आई हैव अ राइट, बट हमारे पास राइट के साथ साथ हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं. जैसे आई हैव अ राइट कि मुझे आपको इस साल बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना है क्लास 12 के स्टूडेंट्स को. इट इज़ माई राइट कि मैं अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बिजनेस पढ़ाऊँगा. बट उसके साथ साथ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. यू नो वेरी वेल विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. टाइमली क्लास लेना है, टाइमली आपके लिए वीडियोस बनाना है, आपके डाउट्स को क्लियर करना है, आपको होमवर्क देना है, होमवर्क चेक कराना है, आपके क्वेश्चन पेपर सेट करना है, आपके क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स को चेक करना है और आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है. सो यू कैन सी दैट देयर आर वन राइट, but we have a lots of responsibility which comes from the specific rights. So you know very well, according to Consumer Act 1986, there are basically 6 rights which are given to all the types of the consumer to perform their duty and responsibility easy. Is that clear? It means आपको अगर कोई राइट मिल रहा है, कंज्यूमर को कोई राइट मिल रहा है, तो राइट के साथ साथ देयर आर सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परफॉर्म प्रॉपरली. अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपको जो राइट्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं वॉइड हो जाएंगे. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू सेफ्टी. सो राइट टू सेफ्टी आपको तभी मिला है व्हेन यू परचेज एनी काइंड ऑफ थिंग्स विथ द स्पेसिफिक मार्क्स. यू नो वेरी वेल, गवर्नमेंट हर तरह के प्रोडक्ट पे एक स्पेसिफिक मार्क प्रिंट करती है. दैट इज़ ISI मार्क फॉर द इलेक्ट्रिकल गुड्स, फॉर एग मार्क फॉर अ फूड आइटम्स. सो अगर आप ये मार्क न देखकर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और आपको कोई लॉस होता है, तो इसके लिए आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एज अ कंज्यूमर वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज आई एम नॉट अ अवेयर कंज्यूमर. In this situation we prove that we are not educated. हम एजुकेटेड नहीं हैं. हमें राइट तो मिला है, राइट टू बी सेफ्टी, बट हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉकिंग अबाउट दी राइट्स, वी हैव टू फोकस ऑन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें राइट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. वी हैव टू टॉकिंग अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़. सो इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू परफॉर्म आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑप्ट आवर राइट्स. अगर हमें अपने राइट्स को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से बियर करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज़ अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर. यू नो वेरी वेल, द लाइन इज गिवन, राइट्स कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज राइट. A consumer must keep in mind the following responsibility while purchasing and using the goods and services. यानी कंज्यूमर को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने से पहले या परचेस करते वक्त उसे अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद होनी चाहिए. अ कंज्यूमर मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी while purchasing and using the goods and services. It is a very important line because कंज्यूमर अगर कोई से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहा है या यूज़ कर रहा है तो उसके साथ साथ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं.
The first one, the consumer must exercise his rights. Their rights include right to safety, right to be informed, right to seek redressal, right to consumer education, etc. Consumer must aware of their own rights. कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. अगर कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, इट मीन्स उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं ख़त्म हो गई. उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी यहीं पे उसने अवॉइड कर दिया कि ही डज़ नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स. यानी अगर हम अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब है कि हम अपने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बियर ही नहीं कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट. It means consumer must be aware of their own rights with regard to the product or services they buy from the market. Number second, consumer must be a cautious consumer. It is very important line. Consumer must be a cautious consumer. Consumer को हमेशा cautious रहना चाहिए. Cautious मतलब हमेशा aware रहना चाहिए. While buying a product or services, a consumer should be taking the following precaution. यानी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उससे पहले उसे कुछ सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए. दैट इज़ see the name of the product and the manufacturer's name and address. यानी कि उसे मैन्युफैक्चरर्स के नेम एंड एड्रेस को देखना चाहिए. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी. जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उस प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है या डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. डेट इज़ अ नेट वेट. उस प्रोडक्ट का वेट कितना है. स्टैंडर्डाइजेशन मार्क. उस प्रोडक्ट पे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है या नहीं है. MRP, दैट इज़ अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस. डायरेक्शन फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए क्या डायरेक्शन मिला है. इफ़ एनी एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट. कंज्यूमर को अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए. जहाँ उसे राइट टू सेफ्टी दिखे, जहाँ राइट टू बी इन्फॉर्म रखे. राइट टू बी इन्फॉर्म मीन्स कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट करो और फिर कंपेयर करो और देन आफ्टर आप प्रोडक्ट को परचेस करो. ओके. उसी तरह से दूसरा है दैट इज कंज्यूमर मस्ट बी अ कॉशियस कंज्यूमर. व्हेन एनी कंज्यूमर बाय एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, कंज्यूमर शुड टेक अप फॉलोइंग प्रिकॉशन. दैट इज अ नेम ऑफ प्रोड्यूसर, date of manufacturing expiry, net weight, standardization mark, MRP, direction for using the product and precaution to be taken while using the product. यानी उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, उसके डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट को यूज़ करते समय हमें क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन लेनी है. डेट इज़ नंबर थर्ड इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट कंज्यूमर मस्ट बी अ फाइल कंप्लेंट फॉर द रिड्रेशल फॉर अ जेन्युइन ग्रीवेंसेस. ये बहुत काफ़ी देखने को मिलता है कि समटाइम्स कंज्यूमर कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर फाइल कर देते हैं कंप्लेंट जो कि इररिलेवेंट होता है. सो इट इज़ आवर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट फॉर द रिड्रेशल और जेन्युइन ग्रीवेंसेस. जो ग्रीवेंसेस जेन्युइन हो. समटाइम्स कंज्यूमर इग्नोर द फ्रॉड और ट्रेडर बिलीविंग दैट लॉस इज स्मॉल, बट दिस एटीट्यूड इनकरेज करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस टू इनकर कंटिन्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर क्या होते हैं, कुछ ट्रेडर्स के फ्रॉड को इसलिए छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि उसकी अमाउंट, लॉस की अमाउंट जो है बहुत कम है. जैसे सपोज अगर हम सोच रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में हम 1 रुपये भी बियर कर रहे हैं, 1 रुपीज़ भी हमें लॉस हो रहा है. सोचो हाउ मेनी कंज्यूमर इन इंडिया. एक देश में कितने कंज्यूमर हैं. सपोज उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले 1 लाख लोग हैं. तो यू कैन सी दैट 1 लाख रुपए, एक कंज्यूमर का 1 रुपये मल्टीप्लाइड बाई विद द 1 लाख कंज्यूमर, सो 1 लाख रुपीज़ का फ्रॉड हो रहा है एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, जो भी कह लो. बट इस तरह का एटीट्यूड रहेगा, सो यू कैन सी दैट इससे करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी और जो सेलर ये फ्रॉड कर रहा है उसके मन में भी अभी छोटे मोटे फ्रॉड हो रहे हैं, अब वो धीरे धीरे बड़े बड़े फ्रॉड करने लगेगा. सो कंज्यूमर को ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे लॉस छोटा हो चाहे लॉस बड़ा हो, उसे कंज्यूमर कोर्ट आना चाहिए, अपने कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए विथ अ जेन्युइन ग्रीवेंसेस. नंबर 4, कंज्यूमर मस्ट बी अ क्वालिटी कॉन्शियस. देयर इज ओनली वे टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट्रेशन एंड सुपीरियर गुड while making purchases. Consumer must look for the following quality marks.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के साथ साथ उस पर जो भी क्वालिटी मार्क्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स हैं, उसे याद रखना चाहिए। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट उसके पास क्या रखता है, उसको उस पर एक मार्क प्रोवाइड करता है। वो मार्क उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होने का प्रूफ होती है। यानी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते समय, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय जो भी स्टैंडर्ड्स स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे वो स्टैंडर्ड्स उठाए गए हैं। ओके, सो सच काइंड ऑफ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट्रेशन एंड सुपीरियर गोल्ड। यू नो वेल, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावटी, यानी उस प्रोडक्ट में कोई चीज़ मिलावट नहीं होगी। सुपीरियर गुड्स का मतलब होते हैं कुछ गुड्स जो डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट की तरह दिखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं इन अदर सेंस जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट, कॉपीड प्रोडक्ट। सो कहीं ना कहीं अगर हम क्वालिटी कॉन्शियस हो जाते हैं, एवरी कंज्यूमर इफ़ बिकम्स अ क्वालिटी कॉन्शियस, सो कहीं ना कहीं हम एडल्ट्रेशन को ख़त्म कर देंगे और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स यानी डुप्लीकेट मार्केटिंग चली है मार्केट्स में, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाट आर द different standardization mark or quality mark? You can see that the government provide a few important types of the quality marks, that is a FPO mark. You can see that on your screen. The first one is a FPO mark. FPO mark which are related to the food product, यानी अगर food product है तो उस पर आप FPO marks देख सकते हैं। Number second is ISI mark. Generally it will be printed on the electrical appliances. अगर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर ISI मार्क है, इट मीन्स वो एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स है। हॉल मार्क फॉर द ज्वेलरी, यू नो वेरी वेल, एंड आई वांट टू से वन थिंग अबाउट द हॉल मार्क। अगर आप हॉलमार्क प्रोडक्ट ज्वेलरी खरीदते हो, सपोज गोल्ड के आपने हॉलमार्क प्रोडक्ट खरीदा और अगर आप उसको जब रीसेल करते हो तो 95% तक की वैल्यू आपको रिसीव होती है। अगर आप विदाउट हॉलमार्क कोई इस ज्वेलरी परचेस करते हो और फिर जब आप उसको बाद में रीसेल करने जाते हो तो उसकी रीसेल की वैल्यू होती है 70 to 75%। सो यू कैन सी दैट द डिफरेंस। हॉलमार्क प्रोडक्ट क्या होता है, रीसेल में भी आपको फ़ायदा देता है। नंबर 4 इज़ द इको मार्क। यू नो वेरी, इको मार्क का साइन जिस तरह से दिख रहा है स्क्रीन पे उस तरह रहता है। एंड इको मार्क जनरली गिव द साइन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। यानी अगर किसी प्रोडक्ट पे इको मार्क प्रिंट है, इस मीन्स वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यू नो वेरी वेल, जब दिवाली आती है तो यू नो हम लोग क्रैकर्स यूज़ करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक क्रैकर्स के ऊपर इको मार्क प्रिंट होता है जो ये सर्टिफाई करता है कि इस तरह के क्रैकर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट पे बैड इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। दैट इज़ अ एग मार्क। एग मार्क का भी साइन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दैट इज़ अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग मार्क यूज फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वूल मार्क फॉर द वूलन प्रोडक्ट एंड होलोग्राम फॉर द बुक। So it is very important line, a vigilant consumer is an assets to the nation. अगर एक कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस है, अवेयर है, तो वो नेशन का एसेट्स है। अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही यूज़ करता है कि अरे छोड़, यानी वो ना उसके क्वालिटी पे ध्यान रखता है, ना छोटे मोटे लॉसेस के लेकर कंज्यूमर फोरम जाता है, सो कहीं ना कहीं वो अपने कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं कर रहा है, अपने राइट्स को यूज़ नहीं कर रहा है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक क्वालिटी मार्क्स while making purchase or using goods. With the help of such things we can eliminate the adulteration from the market. मार्केट से हम adulteration दूर कर सकते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। And number next is advertisement often exaggerated. The seller inform the consumer about their things through the medium of advertisement. The seller aggregate the quality of their goods through advertisement. Therefore, it is the responsibility of consumer to recognize the truth of advertisement. It means कभी कभी एडवर्टाइजमेंट हमें कहते हैं ना, इनहेरेंट मोटिवेट कर देता है। किसी प्रोडक्ट को बिना जाने बिना समझे हम किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, यानी उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी पे हम एनालाइज नहीं करते हैं। बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू रिकॉग्नाइज द ट्रूथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी किसी गुड्स या सर्विस को परचेस करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें बताई गई हैं वो कितना % सही है, कितनी % उसमें सच्चाई है।
So you can see that in today's video we can find the few of the important duties of the consumer, few types of the consumer responsibility, that is the consumer must exercise his right, कंज्यूमर के अपने राइट्स एक्सरसाइज करने चाहिए, कंज्यूमर मस्ट बी अ कॉशियस कंज्यूमर, उसे प्रिकॉशंस को ध्यान रखना चाहिए, कंज्यूमर मस्ट बी फाइल फॉर द रिट्रेशल ऑफ द जेन्युइन रीजंस, एंड कंज्यूमर मस्ट बी अ क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को अपने किसी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर क्वालिटी मार्क्स को देखने चाहिए, एंड कंज्यूमर को टोटली एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खुद से एडवर्टाइजमेंट में दिए गए इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करें एंड देयर आफ्टर उस प्रोडक्ट को परचेस करें. अभी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ बची हुई हैं, सो इट विल बी रिजॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द टॉपिक्स वेरी इजली. आज के लिए